الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم امیر جماعت اسلامی پاکستان سید منور حسن صاحب، دیگر ذمہ داران جماعت، معزز بزرگوں اور دوستوں، میری محترم بہنوں اور عزت مآب ماؤں، آج کی یہ تقریب امریکی استعمار، اسلام اور خطے کی موجودہ صورتحال کے عنوان سے منعقد کی جا رہی ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ موضوع کرنٹ افیئرز سے متعلق کوئی ایک علاقائی صورتحال کو جاننے اور سمجھنے کا موضوع ہے، اور جماعت اسلامی چونکہ گو امریکہ گو مہم چلا ہی رہی ہے، اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ سرگرمیاں، تقریبات منعقد ہوتی ہی رہتی ہیں، تو شاید یہ سلسلہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے، اور ہم نے اس وقت خطے کی صورتحال کو سمجھنے کے لیے اس موضوع پر یہاں محترم امیر جماعت کا ایک لیکچر رکھا ہے۔ یہ بات گو کہ اپنی جگہ غلط نہیں ہے، لیکن اس موضوع کی غرض و غایت اس سے زیادہ وسیع ہے، اور آپ اس پر جتنا غور کریں گے، جتنی گہرائی میں اترتے چلے جائیں گے، آپ اس موضوع کو اپنے ایمان اور عقیدے میں اترا ہوا پائیں گے۔ چنانچہ آج کا یہ عنوان بظاہر ایک لیکچر اور سیمینار کی صورت میں ہو رہا ہے، لیکن دراصل یہ ہمارے زون کے شعبہ تربیت کا ایک حصہ اور ایک جز ہے، اور اسی حوالے سے ہم نے اس کو یہاں منعقد کیا ہے۔ امریکی استعمار کیا ہے، کیا چاہتا ہے، اور ہم امریکہ کے مخالف کیوں ہیں، اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم امریکہ کو محض ایک ملک کے طور پر نہیں دیکھتے، ہم امریکہ کے مخالف اس وجہ سے نہیں ہیں کہ ایک ملک نے اپنی سرحدوں سے باہر نکل کر، نبی کریم آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر نبی کا ایک فرعون ہوتا ہے، اور میرا فرعون ابو جہل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر چونکہ نبوت کا خاتمہ ہو گیا ہے، لیکن نبیوں کی یہ تاریخی کشمکش قیامت تک جاری رہے گی، اور ہر آنے والی امت رسول کا کوئی نہ کوئی فرعون ہوگا۔ ہر آنے والے رسول کی امت کے اوپر یہ لازم ہوگا کہ وہ اس فرعون کے ساتھ وہی معاملہ کرے کہ جو نبی کریم آقائے دو جہاں سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے ساتھ کیا تھا۔ آنے والی ہر امت اور امت کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عہد کے فرعون کو پہچانے، اس لیے کہ فرعون بڑا عیار ہوتا ہے، چالاک اور مکار ہوتا ہے، بڑی مہلک اور گھناؤنی چالیں چلتا ہے، اور انسانوں کو انسانوں سے لڑاتا ہے۔ ماضی کے فرعونوں نے بھی یہی کیا تھا، ہر دور کا فرعون اسی حکمت عملی کو اختیار کرتا ہے، اور صاحب ایمان کی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے عہد کے فرعون کو پہچانے۔ چنانچہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے مخالف ہیں، گو امریکہ گو مہم چلاتے ہیں، تو ہم اس کو اس وسیع تر تناظر میں اپنے ایمان کی گہرائیوں کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اس عہد کا ابو جہل کون ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی طاقت ہے جو اس پورے روئے زمین پر
बवांगे दहल इस बात का ऐलान कर रही है कि सारी दुनिया हमारी मुती व फरमाबरदार है, सारी दुनिया पर हमारे अहकामात लागू होंगे कि अमेरिका के रहने वाले और उसके अलावा जो दीगर मुसलमान हैं जो हमारे आगे सर नहीं उठाते, ये हमारे मुती और फरमाबरदार है, लिहाजा हमारी इनसे कोई लड़ाई नहीं। ऐसा हर वो मुसलमान जो अमेरिका को तागूत नहीं समझता, इस अहद के फिरौन को नहीं पहचानता, अमेरिका उससे बड़ी मोहब्बत करता है, अपना मुती और फरमाबरदार कहता है। जैसा कि माजी के फिरौन ने ये कहा था कि फिरौन की कौम तो, मूसा की कौम तो हमारी मती और फरमाबरदार है, लेकिन उसके जवाब में मूसा ने फिरौन के साथ जो मामला किया था, कुरान के औराक उसके गवाह हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सीरत मुबारका से उसका नमूना कायम किया है और अहले ईमान को ये पैगाम दिया है कि फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, ईमान से पहले तुम अपने अहद के तागूत को पहचानो। अगर तुम ईमान तक पहुंचना चाहते हो, ईमान का मजा चखना चाहते हो, ईमान की बुनियाद पर अपनी दुनिया की तामीर करना चाहते हो और ईमान की बुनियाद पर अपनी आखिरत की कामयाबी का ख्वाब देखते हो, तो पहले तागूत को पहचानो। और सिर्फ पहचानने से मसला हल नहीं होगा, तागूत का इनकार करना होगा, तागूत के मद्दे मुकाबिल खड़ा होना होगा, तागूत के खिलाफ नफरत को ईमान के तनाजुर में अपने दिल की गहराइयों में उतारना होगा। लिहाजा हम जब ये कहते हैं कि हम अमेरिका के मुखालिफ हैं, तो इस वजह से अमेरिका के मुखालिफ नहीं है कि वो कोई मुल्क है जो इस्तेहसाल कर रहा है, वो कोई मुल्क है जो बम बरसा रहा है, वो कोई मुल्क है जिसकी पॉलिसियां हमें नापसंद हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने यह बात कही कि वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंस को नहीं पैदा किया सिवाय इसके कि वो मेरी इबादत करें। दोस्तों और साथियों, इबादत के सिर्फ दो मफाहीम हैं। पहला मफहूम है अतात, दूसरा मफहूम है परस्तिश। कि जब हम इस उन्वान पर बात करते हैं तो अपने ईमान और फरीजा इबादत के तनाजुर में बात करते हैं। इबादत का मतलब अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ये बताया कि परस्तिश भी एक ही जात की होनी चाहिए, अतात भी एक ही जात की होनी चाहिए। लेकिन सदियों की मलूकियत और फिर इस्तेमारी ताकतों के गलबे, इनके जबर के हथकंडों ने हमसे अतात का मफहूम छीन लिया। हमने इबादत को परस्तिश तक, मरासिम उबूदियत तक महदूद कर दिया। लिहाजा हम जब कहते हैं अमेरिका मुर्दाबाद, तो अपने ईमान की पुकार पर लब्बैक कहते हैं। ईमान तक पहुंचने के लिए अमेरिका मुर्दाबाद कहते हैं। क्या अमेरिका इस सत्ते से निकल जाएगा तो हम अमेरिका मुर्दाबाद कहना छोड़ देंगे? क्या अमेरिका बम बरसाना बंद कर देगा तो क्या हम अमेरिका की मुखालफत छोड़ देंगे? क्या अमेरिका हमारी इमदाद बढ़ा दे, अमेरिका हमें सोने के निवाले बनाने लगे, अमेरिका हमारी मईशत को मजबूत कर दे, अमेरिका हमारे घरों को, हमारी बिल्डिंगों को तामीर कर दे, तो क्या अमेरिका हमारे लिए पसंदीदा हो जाएगा? लानत भेजते हैं हम ऐसी हर तामीर पर और अमेरिका की ऐसी हर रजा पर। और हम इसलिए अमेरिका मुर्दाबाद कहते हैं कि हम अपने रब से अपना किया हुआ वादा पूरा करना चाहते हैं। जमात इस्लामी इसी दावत की लंबरदार है। जमात इस्लामी क्या कहना चाहती है, जमात इस्लामी सूरत हाल को किस तरह देख रही है, इसलिए कि हर चीज का इख्तिलाफ में पस मंजर होता है। हमारा पस मंजर सिर्फ एक है कि हम अल्लाह की हाकिमियत और इंसानों की उबूदियत के अलावा दुनिया को किसी तनाजुर में नहीं देखते। अगर अमेरिका की हाकिमियत है तो हमारी उबूदियत का फर्ज यह है कि हम उसके मुकाबले पर जिद्दोजहद करें। उसने हमसे हमारा खिलाफत छीन लिया है, उसने हमें अल्लाह के रब की बजाय अपना बंदा बना लिया है। नाज़ जमात इस्लामी अगर इस तनाजुर में ये बात कर रही है तो इसके लिए यहाँ बात करने के लिए इस तनाजुर में जो शख्सियत हो सकती थी, सैयद मुनव्वर हसन अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, पूरे मुल्क में एमाड़ी से लेकर खैबर तक तरिया तरिया गली कूचे घूमकर लोगों को ये बता रहे हैं कि इसी तनाजुर में हमें अपने हालात को देखना है, इसी तनाजुर में अपने मसाइल को समझना है। हमारे माशी मसाइल हैं, हमारे सियासी मसाइल हैं, बहरान की दलदलों में धंसे हुए हैं। हर बहरान को किसी एक एंगल से देखेंगे कि अल्लाह की हाकिमियत और
हमारा मकसद है खिलाफत। अगर कोई हमसे खिलाफत का मकसद छीन रहा है, हमारी और उसकी लड़ाई होगी। अगर कोई अपनी हाकिमियत का दावा कर रहा है, हमारी और उसकी लड़ाई होगी। हम इसी तनाजुर में अमन को देखते हैं, इसी तनाजुर में दुनिया की हर अच्छी बात, जितनी अच्छी बातें लोग समझते हैं कि अमन होना चाहिए, हम इसी तनाजुर में देखते हैं।